السلام علیکم فرینڈس، پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل ڈرا کی اور ایک ویڈیو لے کر۔ یہ ویڈیو اصل میں پچھلی والی ویڈیو کا ہی حصہ ہے، چونکہ اس میں ہم نے ٹیکسٹ ٹول کے بارے میں بتایا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ کچھ اور چیزیں باقی ہے جو ہم کو سیکھنا ہے۔ تو آج ہم اسی چیز کو بتائیں گے اور اس کو ہم سیکھیں گے کہ ٹیکسٹ ٹول کا باقی جو حصہ ہے وہ کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو کل ہم نے بتایا تھا کہ ٹیکسٹ ٹول میں آپ کس طریقے سے بولڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے فونٹ وغیرہ چینج کر سکتے ہیں اور کس طرح فوٹ جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اور انڈر لائن کرنا ہم نے نہیں بتایا تھا، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ انڈر لائن آپ کیسے کریں گے۔ انڈر لائن کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے سمپلی ہم کچھ لکھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے لکھ لیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے نیچے والے حصے میں کوئی ایک لائن آ جائے، کوئی لکیر آ جائے، یا اوپر چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے اس طرح یہاں پر کلک کریں گے، انڈر لائن پر یہ آ جائے گا۔ لیکن یہاں پر آپ کو صرف ایک ہی آپشن ملتا ہے نیچے کے لیے اور ایک ہی لکیر کے لیے۔ آپ اگر زیادہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمپلی وہاں پہ جانا ہوگا، ٹیکسٹ پر جانے کے بعد آپ اس کو بھی اوپن کر لیجئے، اس ونڈو کو۔ اب اس ونڈو کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے ٹیکسٹ کی کچھ مزید آپ کو سیٹنگ دکھائی دے گی۔ ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر فور جسٹیفائی وغیرہ کے لیے ہے، یہاں پر دیکھیے۔ لیکن اس میں چونکہ ایک ہی ہے، یہ نہیں ہو رہا، اس کو دیکھیے، اس میں دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیے، یہ اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر فونٹ کی اسپیس کی سائز دکھائی دے گی۔ جیسے آپ بڑھائیں گے تو اس کی اسپیس کے اندر دیکھیے جگہ زیادہ بن رہی ہے، لیکن سمپل اس میں 100 ہی رہنے دیتے ہیں، 100% ہی یہ بائی ڈیفالٹ ہے۔ تو دیکھیے، اب انڈر لائن کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹیکسٹ یہاں پر جائیے، پھر آپ کا اگر یہ والا باکس اگر اوپن نہیں ہے، آپ اس کو ایک مرتبہ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دکھائی دے گا۔ اب اس کو ایک مرتبہ کلک کریں گے تو اس طرح کا ڈائلاگ باکس آ جائے گا۔ پھر آپ یہاں پر کلک کیجئے، کلک کرنے کے بعد آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ سنگل لینا چاہتے ہیں یا کس طرح لے رہے ہیں۔ ہم نے سنگل، دیکھیے لکیر آ گئی۔ پھر ہم اس کے اندر موٹی لکیر ہوئی اب، اور ڈبل لکیر، پھر ڈبل، اس طرح کر کے آپ اس کے اندر سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے بند کر دیجئے تو بند ہو جائے گا، یہاں سے بھی بند کر سکتے ہیں، نن کر دیجئے تو ختم ہو جائے گا یہ سب۔ تو فرینڈس، سب سے پہلے ٹیکسٹ ٹول کو ہم نے سلیکٹ کیا، سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے ٹیکسٹ کو ہم نے اوپن کر لیا۔ اوپن کرنے کے بعد ہمارے سامنے اس طرح ڈائلاگ باکس آ جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ اس کو کلک کریں گے، کلک کرنے کے بعد آپ لکیر کو بدل سکتے ہیں، ایک لکیر موٹی، چھوٹی، جس طرح بنانا چاہے بنا سکتے ہیں۔ اور اس کا کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، کون سے کلر میں آپ لینا چاہتے ہیں وہ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو 5 ٹیکسٹ سکھائیں گے۔ اس کے لیے فرسٹ ٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کوئی لکیر بنا لی، جیسے کہ ہم بنا لیتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اسی شیپ کے مطابق آ جائے ٹیکسٹ، اس سے باہر یا اندر نہ ہو، اسی شیپ کے مطابق ہو۔ تو اس کے لیے ہم سمپلی ٹیکسٹ ٹول کو ایک مرتبہ سلیکٹ کریں گے، پھر یہاں پر رکھیں گے۔ جیسے ہی آپ کو اس طرح ترچھی ایک نشان دکھائی دے کرسر کے اندر، آپ ایک مرتبہ کلک کر دیجئے۔ کلک کرنے کے بعد دیکھیے کرسر کس طرف لے گا۔ ایسے اگر ہم یہاں کریں گے تو بالکل سیدھے میں کرسر ایکٹیو ہوتا ہے، لیکن جب ہم یہاں پر ایک نشان آ جاتا ہے اور ہم اس طرح کر کے کلک کرتے ہیں تو ترچھی جس طرح آپ کی لکیر رہے گی اسی کے مطابق بنے گا۔ پھر ہم کوئی ٹیکسٹ یہاں پر دیکھیے، ہم نے
टेक्स्ट को पेस्ट कर दिया तो हमारे सामने सारा टेक्स्ट बन चुका है। हम इसको डिलीट करते हैं। हम आपको फिर दिखा रहे हैं दूसरी चीज़ के अंदर, बॉक्स के अंदर। अब मिसाल के तौर पर हमने एक इस तरह करके बॉक्स बना लिया। अब बॉक्स बनाने के बाद हम इसी के अंदर लिखना चाह रहे हैं, बाहर नहीं ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे। अब अंदर अगर करेंगे तो इस तरह नहीं होगा, अंदर अगर लिखेंगे तो बाहर चला जाएगा, तो इस तरह नहीं हो सकता है। आपको उसके लिए करना ये रहेगा, बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इस तरह करके इसके अंदर, इसी के अंदर अगर आप चाहते हैं तो इसको किसी भी कोने पर जाकर एक मरतबा क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपका बॉक्स बन जाएगा। हम जो भी लिखेंगे इसके अंदर, हम साइज़ इसको कम कर लेते हैं। ये देखिए, हम जो भी लिखेंगे ये तो इससे बाहर नहीं जाएगी। तब हम इसकी साइज़ और छोटी कर लेते हैं, 6 पॉइंट कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हम बॉक्स को बढ़ाते हैं तो इसके साथ साथ इसकी लकीर भी इधर उधर होगी। तो फ्रेंड्स, अगर किसी बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं तो पहले बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बना लेने के बाद आप इसको एक मरतबा क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको किसी कोने पे एक मरतबा क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने जब एक्टिव दिखाई दे इस तरह, तो आप समझ जाइए कि अब अंदर लिखने से अंदर ही जाए, लिखा हुआ होगा, बाहर नहीं आएगा। अब फिर आप जो सेटिंग देना हो सेटिंग दे दीजिए। फिर जैसे कि मैं यहाँ पे सेंटर पे कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद अब हम लिखते हैं कुछ भी, तो उसके अंदर जितना आ सकता है वो आएगा, उतना ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। देख लीजिए, ये हो गया हमारे सामने। तो इस तरह करके आप कर सकते हैं। हम इनको डिलीट करते हैं। अब हम दूसरी चीज़ आपको बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जो भी आप फ़ॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद आप उस फ़ॉन्ट के अंदर जो भी सिंबल है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट का सिंबल किस बटन के अंदर है हमको देखना बहुत मुश्किल पड़ता है, टाइपिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक मरतबा जो भी फ़ॉन्ट होगा, हमने जैसे ये वाला, इसको हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद जैसे हमने ये वाला ले लिया, हम इस फ़ॉन्ट के तहत और जितने सिंबल है हम वो इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनको इस्तेमाल करने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल और F11 दबा दीजिए। F11 जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने तरह का बॉक्स आ जाएगा। अब देखिए, इसके अंदर जितने भी सिंबल है आपको दिखाई देगा। ये देखिए, अब जिसको भी लेना चाहेंगे वो आप ले सकते हैं, आराम से ले सकते हैं। जैसे कि मुझे कुछ लेना हो तो हम यहाँ पर एक मरतबा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, डबल क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ये। एक तो तरीका यह है कि आप डबल क्लिक करके लाइए, और दूसरा तरीका यह है कि आप इस तरह करके लाइए। देख लीजिए, कर्सर को एक मरतबा रखेंगे। आप अगर किसी मुतय्यना जगह पर लेना चाहते हैं तो कर्सर को एक मरतबा रखिए, फिर जिस सिंबल को आप लेना चाह रहे हैं उस सिंबल का आप डबल क्लिक कीजिए तो आ जाएगा। जैसे कि हम इसको लेना चाहते हैं तो हमने डबल क्लिक कर दिया तो वो यहीं पर आ गया। लेकिन हम मुतय्यना जगह पर नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर डबल क्लिक करना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए, ये आ गया है। तो आप इस तरह करके इनका सिंबल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंबल वगैरह फ़ॉन्ट के हिसाब से होता है, किस फ़ॉन्ट का अंदर क्या क्या सिंबल रहता है। सिंबल यानी निशान, देखिए ये बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह भी रहते हैं। फ़ॉन्ट से मुतालिक और वीडियो हम बनाएंगे इंशाल्लाह, तो उसमें हम फ़ॉन्ट के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो ये सिंबल वगैरह लेने का तरीका यह है। आप यहाँ से फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जब यहाँ पे आएंगे, आने के बाद आप फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद उसका जो सिंबल होता है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हर फ़ॉन्ट के अंदर एक तरह का सिंबल नहीं रहता है, देखिए इसके अंदर अलग है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बता दिया आपको। अब एक बात आती है कि हमने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि एक को मोटा करें तहरीर के अंदर, एक को बड़ा करें। जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको यहाँ पे,
देखिए यहाँ पर झारखंड लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल बराबर है। तो हमने आपको बताया था कि इनमें से आप जिसको चाहेंगे फ़ॉन्ट बदल सकते हैं और उसकी साइज़ भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने इसकी साइज़ रख दी 12, तो इस तरह करके हम कर सकते हैं। लेकिन ज़हन में एक सवाल होगा कि इस तरह करके क्या फ़ायदा होता है। हम इसका फ़ायदा आपको बता रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर ये लिखना चाहेंगे 10th, तो आप किस तरह लिखेंगे? इस तरह आपने 10 दे दिया, उसके बाद TH देना रहता है। तो इस तरह नहीं रहता है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी साइज़ को कर देंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसकी साइज़ कम कर दीजिए, या तो इसको नीचे रखते हैं या ऊपर रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने आपको दिखाया कि इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम। अब हम आपको दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके अंदर हम फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर पा रहे हैं, तो इनको हम ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप सबसे पहले Ctrl+Q दबा देंगे तो ये ऑब्जेक्ट में हो जाएगा। देखिए हम फिर दिखा रहे हैं, जैसे ये टेक्स्ट है तो इसके अंदर आपको फ़ॉन्ट चेंज करने के, साइज़ चेंज करने का और वो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप Ctrl+Q दबा देंगे, Ctrl+Q दबा देने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन ख़त्म हो जाएंगे, आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा। अब जैसे देखिए कन्वर्ट टू कर्व कर दिया हमने। देखिए फ़ॉन्ट चेंज करने का जो यहाँ पे ऑप्शन था वो ख़त्म हो गया। अब आपको आउटलाइन दिखाई दे रहा है, यानी ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है, यानी टेक्स्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। आप इसके अंदर कलर वगैरह फिल करके दूसरी चीज़ भी आप बना सकते हैं इसको, और बहुत दूसरे सारे काम में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आइंदा वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको एक बिजनेस कार्ड या कुछ और चीज़ बना के दिखाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेप टूल और टेक्स्ट टूल और दूसरे ऐसे टूल आ गए हैं जिनको इस्तेमाल करके हम एक बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं और एक बैनर वगैरह कुछ भी बना सकते हैं। तो हम आपको कोई कार्ड वगैरह बना के दिखाएंगे ताकि आप कुछ सीख सकें और पिछली वीडियो की मश्क हो जाए।